मुझे IDT में 28 on 28 मिला अपने सब्जेक्टिव पोर्शन में. You can check that in the certified copies. I'll tell you how to use revision lectures also. What should be the correct strategy of utilizing revision lectures. Please learn from the mistakes I made. Hi guys, so welcome on Aspire with Akshat, and on this particular episode we've got inter-CA taxation. Yes, inter-CA का taxation जिसमें DT होता है 60 marks, IDT होता है 40 marks का. तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि भैया आप इंटर-CA के टैक्स के लिए आप एक वीडियो बना दो, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट होता है. DT इतने मार्क्स के लिए बस 60 मार्क्स ही ले आता है, बट है इतना बड़ा. So how to tackle it and how to do it in those 1.5 days. So I've shared my strategy with you along with my own certified copy, and in the end I've also shared my own personal experience of those 1.5 days, the mistakes I made, so that you all can learn from my mistakes, and I just hope that this video will be helpful to you. So regarding lectures and materials, मैंने lectures लिए थे JK शाह से ही सारे papers के लिए in inter-CA. So even taxation was done from JK शाह only. Material मैंने if I'm talking about DT, तो DT में मैंने जो material refer किया था, सर जो हमारे थे उन्होंने क्लास में बहुत हमें नोट्स लिखवाए थे खुद के, तो मैंने वो रेफ़र किया था. फिर मैंने JKSC के जो टेक्स्ट बुक है वो रेफ़र की थी. And then I had just done one quick reading of the module, and I had identified कि यार कुछ भी अगर सर के नोट्स JKSC की टेक्स्ट बुक में कवर नहीं है तो उसे मैंने उधर हाईलाइट कर लिया था. So next time I just have to go through those highlighted content in the ICSM. तो ICSM मैंने बस एक बार पढ़ लिया था और फिर सिलेक्टिव कंटेंट मैंने उधर का हाईलाइट कर दिया था. मेन बेस वाज लेक्चर नोट्स, एंड ये आप लोगों के केस में भी होगा. In your case also you would have studied primarily from the tuition notes. Do not study directly from ICSM, because it is going to be very very tough to study such a huge subject from the ICSM. उधर बहुत आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में दिया होगा, लेक्चर के नोट्स करोगे बेटर रहेगा. IDT में मैंने क्या किया था, IDT बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली सब्जेक्ट होता है, वो 40 मार्क्स जो होते हैं ना अच्छे होते हैं, तो इसके लिए मैंने सीधा ICSM से ही किया था. इन माई ओपिनियन ICSM इज़ वेरी गुड फॉर IDT, आप डायरेक्टली उधर से कर सकते हो. एंड मैंने एक थोड़े लेक्चर में जो नोट्स लिखवाए थे, थोड़े खुद के समरी नोट्स बनवाए थे. अदरवाइज माई मेन सोर्स ऑफ रेफरेंस वॉज द ICSM ओनली. So guys, if you all like the content of this particular video and want to stay tuned for more upcoming videos of inter-CA, yes, inter-CA, so do hit on the like button, the subscribe button and the bell icon, so that you all are updated each time I put out a new video. So guys, coming to strategy of how I scored 88 in my inter-CA taxation, मैंने IDT पे बहुत फोकस किया था. Yes, यू आर दैट राइट, मैंने IDT पे बहुत अच्छा फोकस किया था, और ये आप देख भी सकते हो. मुझे IDT में 28 on 28 मिला अपने सब्जेक्टिव पोर्शन में. यू कैन चेक दैट इन द सर्टिफाइड कॉपीज. दिस बिकॉज IDT 40 मार्क्स के लिए ना बहुत ही ईजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपको IDT को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए. बहुत लोग क्या होता है कि DT इतना लंबा होता है कि वो उसमें ही अपना पूरा टाइम कंज्यूम कर लेता है, IDT तो करते ही नहीं है. But if you see the cost benefit analysis, तो IDT is very scoring and it is comparatively much easier than DT. ठीक है, so few of the tips that I would like to share with you guys is that number one, do each and every example and test your knowledge from the ICSM. ठीक है, IDT में हर एक एग्जाम्पल आप करो, वो जो बॉक्सेस में होते हैं. दिस विल मेक योर कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वेरी क्लियर. So this is very important. By chance, if you're using your tuitions का question bank as a main source, I would still recommend that once go through ICSM के examples and test your knowledge. और आपको जो भी ऐसा लगता है कि यार these questions deserve my attention in the upcoming revisions also, तो आप उसका सीधा एक रेफरेंस बना लो अपने क्वेश्चन बैंक में. लाइक मैंने ये अपने फाइनल CA में ऐसे किया था. यू कैन फॉलो दिस ऑल्सो. सेकेंड इज़ IDT बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसे बहुत लॉजिक के साथ पढ़ो, रट्टा मत मारना. इट्स कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, सो मोस्ट ऑफ द लॉज ऑल्सो वुड बी बेस्ड अपॉन दैट फिलोसफी ओनली. नंबर 3, अगर आपको लगता है कि कोई एक टॉपिक आपसे खुद से नहीं हो रहा, या फिर आप खुद से तो कर पा रहे हो लेकिन टाइम बहुत ले रहे हो, या फिर आपको आप पढ़ते हो लेकिन बार बार भूल जाते हो,
तो रिविजन लेक्चर्स यूज़ करो। IDT में रिविजन लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आप अपना टाइम अच्छे से यूज़ कर पाओगे। से सपोज अगर रजिस्ट्रेशन पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगता है, थ्योरी है थोड़ा, तो अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन, तो यू ऑल कैन रेफर रिविजन लेक्चर्स ऑल्सो आप अपने अनप्रोडक्टिव टाइम में, जैसे मेरे लिए आफ्टर डिनर वुड बी अनप्रोडक्टिव, तो उस समय को आप अपने रिविजन लेक्चर्स में यूज़ कर सकते हो। Number 4 is that make abundant short examples. These will help you further enhance your understanding. Like अगर आप देखोगे तो इधर मैं RCM के नोट्स में लिखा है setting fees to independent director whether RCM is applied or not. Salary to managing director जिसमें TDS कटा अंडर सेक्शन 192 RCM अप्लाई होगा या नहीं, नेगेटिव लिस्ट होगी या नहीं। तो ये सब आप जब शॉर्ट एग्जाम्पल्स आप अपने रिविजन्स में ही आप टैकल कर लेते हो ना, तो मेन एग्जाम में अगर ये आए भी ना, तो यू विल बी इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड दैट यू विल बी एबल टू आंसर देम। सो मेक दी शॉर्ट एग्जाम्पल्स, ओके। देन नेक्स्ट इज दैट IDT बीइंग अ प्रैक्टिकल पेपर, सॉल्व द क्वेश्चंस खुद से, ओके। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल देने के लिए अगर मैं बोलूँ कि आई बॉट गुड्स इंट्रा स्टेट वर्थ 1 लाख रुपीज़, जिसमें से मेरे पास इन्वॉइस बस 90,000 के लिए, तो सीधा इसमें आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप सीधा सोल्यूशन में चले गए और आपने देख लिया कि यार इसका क्या ट्रीटमेंट हुआ। नहीं, आप पहले खुद सोचो कि गुड्स हमने खरीदे इंट्रा स्टेट, तो CGST SGST लगेगा या फिर UTGST, ओके। एंड हमें बस 90,000 पे ITC मिलेगा, सो 90,000 इंटू से 18%, 90,000 into 18%, 16,200 total ITC, 8,100 total ITC you should be able to avail. Now go to the solution and check अगर solution में वो appear हो रहा है क्या। अगर appear हो रहा है तो टिक कर लो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आप सीधा ही solution देख लो, पहले खुद सोचो और फिर देखो solution में। Then another strategy I would like to highlight is a highlighting strategy. आप देख सकते हो मैंने ये एग्जाम्पशन में बहुत यूज़ किया है। लाइक से इन दोज 1.5 days in order to make my notes most concise, I just highlighted certain chapters। से exemptions में मैंने ये फॉलो किया था। तो exemptions में जैसे ही मुझे देखा कि यार पब्लिक कन्वीनियंसेस, बाथरूम्स, पब्लिक लाइब्रेरी, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, क्लोजिंग ऑफ बिजनेस, तो आई नो दैट दीज आर exempt. I don't need to read that entire statement given over there, services such as blah blah blah, वो सब नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। बस वो एक कीवर्ड देख लिया, ये एग्जाम्ट हो गया। अपने को एग्जाम में बस इतना ही जानना ज़रूरी है फॉर सच चैप्टर्स, ठीक है। देन कैंसलिंग स्ट्रैटेजी यू ऑल शुड यूज़। व्हाट आई मीन बाय कैंसलिंग स्ट्रैटेजी इज़ दैट अगर कोई क्वेश्चंस है या MCQs आ गए, जो अगर आपको लगता है कि यार ये तो मतलब ये मैं कर पाऊँगा, ये बहुत ईजी टाइप के क्वेश्चंस है, आई डोंट नीड टू गो थ्रू देम अगेन इन माई अपकमिंग रिविजन एंड वन डे बिफोर द एग्जाम, सो कैंसिल इट स्ट्रेट अवे ओवर देयर, ओके। उसमें ज़्यादा टाइम आगे के रिविजन में खोटी नहीं होना चाहिए। अनदर थिंग इज़ दैट आप खुद के भी ईजी नोट्स बना सकते हो। लाइक अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स क्या कहता है कि इट शुड बी टाइम ऑफ सप्लाई इज़ on the date of invoice or up to the due date of invoice, whichever is earlier. So in this case you can do something like on the date of invoice or date of removal or making available of goods, whichever is earlier. So you all can make your own easy notes and you don't need to stick to the ICI language in every case. It's fine if you write your own language if it makes sense and if it is legally correct, okay. So another thing of how I cracked my CA Inter DT strategies for that is number 1 ABC analysis मैंने किया था, ठीक है। तो ABC analysis का क्या मतलब कि जो questions बहुत बहुत tricky है उन्हें मैंने A कर लिया, जो क्वेश्चंस ठीक है मैनेजेबल है बट मुझे फिर भी आगे के रिविजन्स में देखना चाहिए उन्हें बी कर लिया, जो क्वेश्चन ऐसे कि यार नहीं देखा तो भी चल जाएगा उन्हें सी कर दिया मैंने स्ट्रेट अवे, ओके। और आप एक और इसमें कैटेगरी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो सकते हैं एंड इस क्वेश्चन को तो करना ही करना है इन दोज 1.5 days, तो उसे A+ कर दो आप, ठीक है। फिर
revision lectures in DT are the most important across any subject, okay, compared to any other subject. Revision lectures जो DT में होते हैं ना, these will help you to crack DT because DT is so long. I personally find it too difficult to do it in those 1.5 days. तो रिविजन लेक्चर्स बहुत आपको हेल्प करेंगे एंड आई विल टेल यू हाउ टू यूज रिविजन लेक्चर्स ऑल्सो, व्हाट शुड बी द करेक्ट स्ट्रैटेजी ऑफ यूटिलाइजिंग रिविजन लेक्चर्स. सपोज आप ले लो PGPP, ठीक है, PGPP आप खुद से करने जाओगे तो आपको कुछ घंटे तो लगेंगे. आई वुड रेकमेंड भंवर सर्स रिविजन लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, दे विल बी अवेलेबल. तो अगर आप वो कर लोगे तो PGPP आप स्पीड व्यूइंग के साथ तो 1 घंटे में देख ही लोगे, ठीक है. लेक्चर रिविजन लेक्चर जो PGPP का वो आपने 1 घंटे में कर लिया. और फिर अभी आप क्या करो, अभी आप जाओ अपने खुद के नोट्स में, रिटन नोट्स में PGPP के, उसमें आप देखो ऐसी कोई चीज़ जो से अगर रिविजन लेक्चर में मिस हो गई हो, बहुत कम चीज़ होगी जो मिस होगी, या ऐसी कोई चीज़ हो जो सर ने अपने रिविजन लेक्चर में बोली बट आप चाहते हो कि यार मुझे भी एक बार तो ये गो थ्रू खुद से करना ही पड़ेगा तभी दिमाग में बैठेगा. लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल, आइटम्स इन विच ओवर विच यू डोंट गेट एडिशनल डेप्रीसिएशन. तो अगर सर बोलेंगे ना तो आई वुड रेकमेंड कि एक और बार, क्योंकि वो एक लिस्ट है, आप फिर से गो थ्रू दैट कंटेंट योर सेल्फ ऑल्सो, तभी आपके दिमाग में रजिस्टर होगा. तो ऐसी चीज़ें जो सर ने या तो मिस की है, बोली नहीं है, या तो सर ने बोली है लेकिन आप चाहते हो कि आप खुद से भी एक बार गो थ्रू करो, ऐसी चीज़ों को आप हाईलाइट करो अपने नोट्स में अभी का अभी. दिस इज़ व्हेन यू स्टडीइंग DT फॉर द फर्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम से क्या होएगा, नेक्स्ट टाइम से आप सीधा रिविजन लेक्चर देख लो एंड दैट हाईलाइटेड कंटेंट देख लो. तो आपका PGPP जो इतने घंटे लेता वो आपको बहुत ही कंसाइज हो जाएगा एंड टू द पॉइंट होएगा, जितना आपको एग्जाम में याद रखना है उतना ही. सो मेक यूज़ ऑफ रिविजन लेक्चर्स. अगेन इन DT ऑल्सो क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो, डोंट डायरेक्टली लुक एट द सोल्यूशन. हाईलाइटिंग स्ट्रैटेजी आपको डिडक्शंस में काम आ सकती है, एग्जाम्पशंस में काम आ सकती है, कैंसिलिंग स्ट्रैटेजी भी आपको काम आएगी DT में, जैसा मैंने IDT में बोला. एक बोनस टिप आप लोगों के लिए ये है कि DT में बहुत सारे चैप्टर्स के पीछे ना वो होता है समरी टाइप, लाइक TDS होता है, वो सब होता है. सो इट इज़ वेरी वेरी गुड टू रेफर ऑल दैट. ये मैं बोल रहा हूँ ICI SM में दिया होता है, तो या तो आप ट्यूशन के नोट्स में अगर कोई समरी है आपके पास तो आप उधर रेफ़र कर लो. अगर आपके फैकल्टी ने ऐसी समरी नहीं दी है तो आप ICI की भी समरी रेफ़र कर सकते हो. जैसे TDS में ICI ने दिया है सेक्शन नंबर, क्या रेट लगेगा, क्या आइटम ऑफ एक्सपेंस पे लगेगा, क्या लिमिट के ऊपर से कि अगर कमीशन है तो अबव 50,000 हुआ एक्सपेंडिचर तभी आपको इनकर करना पड़ेगा. तो ये सब समरी आप जब करके जाओगे ना तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि एंड में एग्जाम में आपको ये सब कंटेंट ही याद रहेगा, ठीक है. एंड या moving on to certified copies. Certified copies I've attached in the description box. I've attached the May 19 question paper, my May 19 answer sheets of DT, IDT and the May 19 suggested answers, so you all can have a holistic view of my content and what ICI has written there, and decide how to present the paper for yourself. फिर पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स जो मैं आपको फिर भी दूंगा या आप उसमें भी देख सकते हो, इज़ दैट आपको पहले IDT अटैम्प्ट करना चाहिए पेपर में, ठीक है. DT पहले पेपर में अटैम्प्ट मत करना, क्योंकि DT बहुत ही ट्रिकी देता है ICI हर अटैम्प्ट में. ये कोई एक अटैम्प्ट की बात नहीं, हर अटैम्प्ट में ICI बहुत ट्रिकी DT का पेपर देता है. अब पहले DT करोगे आपका मोरल लूज हो सकता है, इससे पहले IDT करो. शॉर्ट होता है, स्कोरिंग होता है. टू IDT फर्स्ट. नंबर 2, लैंग्वेज डज नॉट मैटर. DT हो IDT हो, लैंग्वेज डज नॉट मैटर. योर कंटेंट शुड बी लीगली राइट, दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है. उसके ही मार्क्स होते हैं, लैंग्वेज के मार्क्स नहीं होते DT IDT में. नंबर 3 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग नोट्स एंड नोट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट in your DT IDT and these also carry marks. To give you an example, जैसे IDT हो गया, उसमें अगर स्कूल है, सो इट इज़ प्रोवाइडिंग से कंप्यूटर सर्विसेज टू इट्स स्टूडेंट. तो अगर आप नॉर्मली करोगे तो आप बस लिख के आ जाओगे एग्जाम्प्ट, बट एग्जाम्प्ट तो आपको लिखना है, उसके नीचे उधर ही एक रेफरेंस करो नोट 1
नोट 1 नीचे लिखो, उसमें लिखो हाउ फर्स्टली स्कूल इज कवर्ड इन डेफिनेशन ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पहले वो लिखो बिकॉज इट इज़ प्री स्कूल अप टू हायर सेकेंडरी, तो उसमें आपका स्कूल भी कवर हो जाता है, तो इट्स एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एंड एक्ट में ऐसा लिखा है कि सर्विसेज बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट स्टाफ फैकल्टी आर एग्जेम्प्ट एंड हेंस अगर कुछ भी लाइब्रेरी कंप्यूटर सर्विस दिए स्टूडेंट को तो दोज विल बी एग्जेम्प्ट, ऐसा आपका नोट होना चाहिए। सेकेंडली डी में आप कैसे नोट्स में बोल रहा हूँ, डी में अगर आप कुछ भी सपोज ये हम लोग पढ़ रहे हैं गिफ्ट का, ठीक है, 56 to 10 का, तो उसमें कैसे कोई चीज़ अट्रैक्ट हो रही है, लाइक विदाउट कंसिडरेशन है, अबव 50,000, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा, इसके मार्क्स कैरी होते हैं, नहीं तो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि आपको बस फ्लूक में आंसर आ रहा है, ठीक है। सो अगर से मुझे कैश मिला बट मुझे 30,000 का ही कैश मिला है पूरे साल में, तो दैट विल नॉट बी टैक्स अंडर 56 to 10, यू हैव टू राइट दैट बिकॉज 56 to 10 इज एप्लीकेबल व्हेन यू रिसीव कैश above 50,000 in a previous year, तो ये अप्लाई नहीं होगा। फोर्थ, केस लॉज नेम्स अगर याद कर सकते हो तो करो, इम्पॉर्टेंट वंस जो है उन्हें तो याद करके ही चलो आप लोग, जैसे मुझे ये अभी भी याद है बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट, मंजुला बेन शाह वर्सेस द बॉम्बे हाई कोर्ट, वो इंडेक्सेशन पे होता है कि अगर प्रीवियस ओनर से आपको कुछ भी कैपिटल एसेट मिलता है तो इंडेक्सेशन कब से होना चाहिए, फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्विजिशन फॉर द प्रीवियस ओनर और फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन फॉर योर सेल्फ, कब से। तो ये सब भी आपको, आप कोई भी एक व्यू फॉलो कर लो अपने मेन सोल्यूशन में, सेकंड व्यू आपको फिर भी नोट्स में लिखना चाहिए, एंड यू शुड मेंशन मंजुला बेन शाह वर्सेस द बॉम्बे हाई कोर्ट। सो दीज आर पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। सर्टिफाइड कॉपीज आर अटैच्ड। MCQs आप कर रहे हो तो बस ICI बुकलेट के करो और फैकल्टी के मत करो इन माई ओपिनियन, और फैकल्टी का आपको करना है तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो MCQs आप ICI वाले ही करो, क्योंकि ICI के MCQs की लेवल बहुत अच्छी होती है एंड दीज आर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द ICI, राइट, सो यू शुड डू दैट एंड यू शुड टारगेट एटलीस्ट 75% ऑफ दिस बुकलेट आप करके ही जाओ बिफोर योर एग्जाम। पूरे नहीं करोगे तो भी ठीक है, बट 75% तो एटलीस्ट बोल रहा हूँ हो जाना चाहिए। सो गाइज, अनदर बोनस टिप दैट आई वुड लाइक टू शेयर इज दैट जैसे TDS हो गया, TDS में लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि यार इतने सारे सेक्शंस है इंटर CA लेवल पर, तो मुझे याद नहीं रहता तो क्या करूँ। सो ऑलवेज लिंक द सेक्शंस टुगेदर, देखो कि कौन से ऐसे सेक्शंस है जो तभी एप्लीकेबल होंगे जब इंडिविजुअल या HUF का टर्नओवर अबव 1 CR इन बिजनेस, अबव 50 लाख इन प्रोफेशन होगा। ये वो अचीज ACHIJ 194 ACHIJ वाले सेक्शंस है, मुझे अभी भी याद है बिकॉज ऑफ दिस कोड वर्ड दैट आई मेड। सो डू दैट, देखो कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जो सिर्फ रेजिडेंट को अपन पेमेंट करते तभी लगेगा, नॉन रेजिडेंट को क्या तो 195 लगेगा। जैसे अगर सैलरी पे किया, सैलरी किसी को भी पे किया तो 192 में ही आएगा, बट अगर मैंने से इंटरेस्ट दिया, ठीक है, पार्टनर को इंटरेस्ट दिया तो वो आएगा 195 में, ठीक है। तो चेक विच सेक्शंस आर एप्लीकेबल टू एवरीवन, विच सेक्शंस आर एप्लीकेबल ओनली टू रेजिडेंट, ये भी आपको फिर उसका एक कलेक्शन बना लो, उसका एक कीवर्ड बना लो। Coming to how many RTPs, MTPs I solved 3 RTPs, MTPs। अगर आपका अटैम्प्ट है नवंबर 23 तो नवंबर 23, मई 23 एंड नवंबर 22 आपको 3 करना चाहिए। और क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं DT IDT, सो मेक श्योर कि जो अमेंडमेंट्स होते हैं लास्ट ईयर की RTP MTP में आप वो अमेंडमेंट्स कर लो जो आपकी करंट लॉ के हिसाब से, दोज RTPs MTPs शुड बी अप्रोप्रिएटली अमेंडेड, ओके। नंबर ऑफ रिविजन आई वुड सजेस्ट 3, बाई 3 आई मीन कि आप 3 इन डिटेल स्टडी करो DT IDT की, एंड देन एग्जाम के एक दिन पहले भी आप करो। एग्जाम वाला रिविजन इज नॉट इंक्लूडेड इन द 3, सो यू शुड टारगेट 3 रिविजन्स ताकि एग्जाम में आप वो 1.5 days में करवाओ। सो कमिंग टू माई पेपर एक्सपीरियंस, by paper experience I mean the 1.5 days experience, it wasn't so great to be honest. I'd given 0.5 days to IDT, 1 day to DT, that's how I distributed my 1.5 days। and मैंने क्या मिस्टेक की थी, मुझे पता नहीं क्यों लगा था कि मैं DT एक दिन में कर लूँगा, बट मैं खुद से DT एक दिन में कर नहीं पाया।
IDT I had done in 0.5 days. In DT in 1 day, I could accomplish only PGPB, salary and capital gains मैंने आधा किया था, थोड़ा TDS कर लिया था, तो थोड़ा मैंने हाँ ये important chapters की कर लिए थे, but फिर भी बहुत सारे chapters pending हो गए थे. So that is why I'm telling you, please learn from the mistakes I made. DT में revision lectures will be very helpful. Even 1 day before the exam you should watch revision lectures. तो इससे ही वो concept आपके दिमाग में भी बैठेगा and you will be able to utilize that 1 day to the most. Okay. खुद से आप करने जाओगे, आपको कोई भी चैप्टर करने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप करो. नाउ कमिंग टू द थर्ड बोनस टिप. आप लोग भी सोच रहे होंगे इतने बोनस टिप इसमें. येस, बिकॉज इट इज़ अ टैक्स पेपर एंड बिकॉज यू गाइस दैट इंटर सीए, यू गाइस शुड नो दिस. आप लोग जब अपने रिविजन्स कर रहे हो ना, तभी यू ऑल शुड पे अटेंशन टू व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू गाइस आर मेकिंग. से अगर आप कंसिस्टेंटली, अगर आप 56-10 में अगर आप कंसिस्टेंटली मिस्टेक्स कर रहे हो, ठीक है, सो यू शुड नो यार मेरा 56-10 थोड़ा वीक जा रहा है. और एग्जाम के एक दिन पहले चाहे आप बाकी सेक्शंस के क्वेश्चंस करो या ना करो, 56-10 के क्वेश्चंस तो आपको गो थ्रू करने ही चाहिए अगर वो आपका वीक स्पॉट है, अगर आप उधर प्रोन हो मिस्टेक्स से, ठीक है. सो यू शुड नो व्हाट आर योर वीकनेसेस सो दैट 1 डे बिफोर द एग्जाम अगर आपने वो आपने सम्स देख लिए तो आपको एग्जाम में तो याद रहेगा यार कि 56 स्टूडेंट का सम ऐसे सॉल्व करते हैं. ओके गाइज, सो आई थिंक दैट्स द एंड. Thank you for watching this video. I hope this video was of use to you. Study well. DT बहुत लोगों को tough लगता है, but I'm very sure if you all follow the right strategies, even you all can score well. I had scored 88. To be very honest, when I was writing the paper, I did not know that I will be able to score 88. तो ऐसी चीज़ें भी होती है. कभी कभी ना आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, but actually ऐसा नहीं होता है. एक्चुअली एग्जामिनर आपको स्टेप्स के लिए भी मार्क्स देगा. फाइनल आंसर भले ही रॉन्ग हो, स्टेप्स के लिए भी मार्क्स देगा. सो दैट्स व्हाई डोंट लूज होप और डोंट बी डीमोटिवेटेड आफ्टर 1 बैड पेपर, बट नो दैट स्टेप्स के लिए भी मार्क्स मिलेंगे और पेपर एक्चुअली एग्जामिनर चेक करेगा, आप नहीं चेक करोगे. सो व्हाट यू थिंक ऑफ योर पेपर इज नॉट दैट रेलिवेंट. ओके, सो yeah, I hope this video was of use to you. If you all like the content of this video, hit on the like button and the subscribe button, and do share it with your friends so that you all can ace your exams together. This was Aspire with Akshat. Bye.